बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस ने बंजारा हिल्स पब मुनशियात मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि रेव पार्टी में कोकीन बरामद हुई। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि तमाम अमीर अफराद के बच्चों को रिहा कर दिया गया। कानून तमाम के लिए मसावी होना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कानून की हुक्मरानी मुक़द्दम है, ताहम अफसोस इस बात का है कि रेव पार्टी में कोकीन बरामद हुई है और तमाम अमीर बच्चों को रिहा कर दिया गया और एक शख्स बशमूल पब के मालिक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। कानून का इत्लाक़ गरीब और अमीर पर मसावी होना चाहिए। उन्होंने मजलिस के कॉरपोरेटर को गिरफ्तार करने वज़ीर KTR के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ये ट्वीट किया। सिविल सप्लाईज भवन और विद्युत सुधा के मुहासिरे से रोकने के लिए पुलिस ने सदर PCC रेवंत रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन को नज़रबंद कर दिया। बरक़ी की शरहों और रियासत में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस के बेशतर कायदीन ने एहतजाज की अपील की थी। सदर PCC रेवंत रेड्डी, पार्टी के कारगुजार सदर महेश गौड़, सीनियर कायदी मोहम्मद अली शबीर, मल्लू रवि, D श्रवण, H वेणुगोपाल, B जोटसन और नागेश मुदिराज के साथ साथ दीगर कई कायदीन को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया। पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर कांग्रेस के कायदीन को नज़रबंद किया है। पुलिस की भारी तादाद जुबली हिल्स इलाके में वाक़ रेवंत रेड्डी के मकान के करीब तैनात कर दी गई है। पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल के हिस्से के तौर पर कांग्रेस के कारकुनों ने रियासत भर में कलेक्ट्रेट्स के सामने मुजाहरे किए। बाद अज़ां उन्होंने कलेक्टर्स को मेमोरेंडम भी हवाले किए। क़ब्ल वज़ीर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के ज़िले कायदीन के साथ वर्चुअल मीटिंग्स मुनक्किद की। కాబట్టి నేను మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్న జాగ్రత్త వెరీ సూన్ చాలా తొందరగానే మళ్ళా ప్రజలు తిరగబడతారు, ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారు. ఈ పెరిగిన ధరల మీద బీజేపీ మీద కానీ, పెట్రోల్ మీద కానీ, గ్యాస్ మీద కానీ, లేకుంటే ఎలక్ట్రిసిటీ మీద కానీ, లేకుంటే మన వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయకుంటే కేసీఆర్ ఊరి పెడతారు. కానీ కేసీఆర్కి అండ్ కేసీఆర్కి టీం ఏదో ఉందో భజన మండలి టీంను అందరినీ వెరీ సూన్గా వాళ్ళను ఊరిపెట్టే సమయం ఆసన్నమైంది. మీకు కూడా చెప్పేది ఏమంటే, మేము కూడా 45 సంవత్సరాలు అధికారం చేసినాం, కానీ ఇట్లా ఎవరికంటే వారికి అరెస్ట్ చేయాలి. అంత పెద్ద తెలంగాణ మూవ్మెంట్లో కూడా ఎవరిని అరెస్ట్ చేయాలి. మిలియన్ మార్క్స్కి ఇచ్చినాం, మన ట్యాంక్ బ్యాంక్లో పర్మిషన్ ఇచ్చినాం, మేము పోయి ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ధర్నా చేసి పర్మిషన్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చినాం అపోజిషన్ పార్టీకి. అట్లా ఉండే కోఆర్డినేట్ రిలేషన్షిప్. అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు అపోజిషన్కి చేస్తా అంటే మేమే నిలబడి వాళ్ళకు పర్మిషన్ ఇచ్చినాం. ఇదేమో ఆయన పోయి ఢిల్లీలో కూర్చుంటాడు, ఇక్కడేమో ప్రభుత్వం ఆర్డర్ తీసేస్తున్నారు. దీనికి నిరసన తెలుపుతున్నాను. ఇది మంచిది కాదు. కేసీఆర్ ఇప్పుడైనా మానుకో, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. మరి ఇట్లా ప్రజాస్వామ్యంకి కూని చేయకు. నిన్నని ఇయ్యాల కూడా చదివిన పాపం అమ్మాయి గవర్నర్ గారికి ఇన్సల్ట్ तेलंगाना के तमाम अजला में किसानों की भूख हड़ताल के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की अपील के हिस्से के तौर पर खम्मम में TRS की जानिब से कलेक्ट्रेट के सामने धरना चौक पर भूख हड़ताल की गई, जिसमें पार्टी कायद व वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार ने शिरकत करते हुए भूख हड़ताली कायदीन से यगानगत का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदारी के मामले में मरकज़ी हुकूमत नामुनासिब सलूक कर रही है। అప్పీల్ చేసిన నేను 5 నిమిషాల్లో అందరూ కూర్చోవాలని చెప్పిన దయచేసి తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకుడు దయచేసి మిత్రుడు పాడవడం. థ్యాంక్ యూ. కన్నా తల్లి తెలంగాణను కన్నీళ్ళు మా కేసీఆర్ పెట్టు గతీయంగా రాలిపోతాడు, రాజకీయంగా రాలిపోతాడు, రాజకీయంగా తెలంగాణ ఆకాంక్షను కబలిస్తూ తెలంగాణ ప్రజల బాలని మీ అందరినీ కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. గద్దపైన ముత్యము పువాడా జయన్న, మన TRS కే ఆడు ముత్యము పువాడా జయన్న, మన TRS కే ఆడు ఎత్తుకుంటాడు, ఎదగడు చేయడు, ఎన్ను చూపడు, ప్రజాసేవన ప్రాణమంతడు, మాట తప్పని
తప్పని మంచి లక్షణం అలా సౌండ్ పెట్టే మాట తప్పని మంచి లక్షణం పువ్వాడ జయన్న మన్మ తిప్పని మహామనిషి పువ్వాడ జయన్న ఖమ్మం జిల్లా తెలంగాణ మనమందరం పోరాడాలని ఆ పోరాటంలో సమితులు రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రివర్యులు పువ్వాడ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లలో రైతు నిరసన దీక్ష కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉన్నాం. దానిలో భాగంగానే రైతు సమన్వయ సమితి జిల్లా అధ్యక్షులు నల్మల వెంకటేశ్వర గారు, కూడా చైర్మన్ గారు मक्का मस्जिद में तरावी की अदायगी के लिए आने वाले मुसल्लियों को कल रात उस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब पुलिस की जानिब से यूनानी हॉस्पिटल की गेट को खुफल डाल दिया गया। मजलिस की बरवक्त नुमाइंदगी के नतीजे में पार्किंग को बहाल कर दिया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात से रमज़ान मुबारक के दौरान शहरी तरावी की अदायगी के लिए मक्का मस्जिद का रुख करते हैं। बरसा बरस से मुसल्ली अपनी गाड़ियाँ यूनानी हॉस्पिटल में पार्क करते हैं। कल रात भी जब हस्बे मामूल वो पहुँचे तो अचानक उन्होंने देखा कि गेट को मोगलपुरा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर की जानिब से मुकफ़ल कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के नतीजे में मुसल्लियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि गाड़ियां पार्क करने के लिए कोई मुकाम करीब में दस्तयाब नहीं था। कई मुसल्लियों को नमाज के लिए पहुंचने में ताख़ीर हुई। इत्तला मिलते ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर सुहेल कादरी मजलिसी कारपोरेटर फौरी यूनानी हॉस्पिटल पहुंच गए और उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सब इंस्पेक्टर से अचानक गेट को मुकफ़ल करने की वजह दरियाफ्त की। मजलिसी कारपोरेटर ने सुपरिटेंडेंट यूनानी हॉस्पिटल से भी फ़ोन पर रब्ता किया और उन्हें बताया कि बरसा बरस से रमज़ान के दौरान तरावी के औकात में गाड़ियाँ यहीं पार्क की जाती हैं। उन्होंने दोबारा सुपरिटेंडेंट से आज मुलाकात की और पार्किंग के लिए रुकावटें पैदा न करने की ख्वाहिश की, जिसके बाद यूनानी हॉस्पिटल में पार्किंग बहाल हो गई। आपको कौन बंद करो बोला आपको? एक मिनट जी आप कब आए यहाँ पर? आप यहाँ कब आए पुलिस स्टेशन पे? यहाँ पर आप कब चार्ज लिए यहाँ पर एसआई का? I got a complaint from the principal of कौन कंप्लेंट? Unani hospital principal. बुलाइए आप ऐसा नहीं करना। आप ये देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं? सुनो जी, साहब ये 25 साल से ऐसी रोज मक्का मस्जिद में तरावी होती है, यहाँ पर पार्किंग होती है। आप आके ऐसा नहीं करना। आप कंप्लेंट आया तो मैं हम आया। बस बुलाइए आप यहाँ भेज खोलो जी वो खोलो। अरे सुनो जी भाई, what I'm saying, do you know? आप आपकी ड्यूटी करें ना सर। ठीक है चलिए। कौन कंप्लेंट करे? सुपरिटेंडेंट करे आपको कंप्लेंट? सुपरिटेंडेंट करे आपको कंप्लेंट? या प्रिंसिपल करे आपको कंप्लेंट? I got a dial-in call from the Unani hospital. कौन? See, the dial-in call. हाँ। It is what is it? It is unnecessary to say about the complaint to you. But what I'm saying is, I came on my duty. आप इसीलिए आगे अरे मेरे दोस्त ऐसा मत करिए। आप सुनो, आप हमारे एसआई साहब इधर सुनिए, ये काम नहीं चलता यहाँ पर ऐसा। अरे या आप ट्रैफिक को जाम कर रहे हैं। आप यहाँ पर अब यहाँ पर हजारों लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए यार। यहाँ पर है, आइए आप इधर आइए। क्या तमाशा कर रहे हो तुम लोग? बुलाओ। कितने साल से तुम यहाँ पर? हाँ 26 साल से। क्यों यहाँ तरावी के वक्त यहाँ नहीं आते? यहाँ पर चलिए कोई आए तो नहीं यहाँ से। बोलो मैं आया। बोलो इंस्पेक्टर साहब भी थे। बोलो क्या है आखिर ये? पहली वक्त लॉकडाउन तुम, ये पहली वक्त लॉकडाउन तुम क्या तमाशा कर रही है? अरे बड़े बड़े भाई, तुम लॉक डालेंगे तो बीच में रखेंगे। नहीं क्यों डाल रहे लॉक? क्यों डाल रहे लॉक? कंप्लेंट कौन करे? उनको एसआई को कंप्लेंट कौन करे? आप करें आपको कंप्लेंट करें तो आएंगे आप, नहीं तो क्यों आएंगे यहाँ पर? कौन है? बोलो मैडम आदाब। बोलो मैडम। मैडम रोज पार्किंग नहीं देते। सुनिए मैडम, रोज पार्किंग नहीं देते। और जो हमारे सुपरिटेंडेंट मैडम, सुनिए आप, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। सुनिए मैडम प्लीज, आप सुनिए। आप
आप इतनी रात को भी आप फ़ोन रिसीव कर दे रहे हैं, थैंक यू आपका, आप वॉचमैन का फ़ोन रिसीव करे। ये 25 साल नहीं, जब से यहाँ तराबी होती है मक्का मस्जिद में, उसकी पार्किंग यहाँ पर ही होती मैडम। आप फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हैं, आप अभी आए। आप जब स्टूडेंट थे तो भी पार्किंग यहाँ पर होती थी। आज आप सुपरिटेंडेंट बन के आए मैडम, आप तो पार्किंग यहाँ पर है। लास्ट 2 ईयर तराबी नहीं थी यहाँ पर, इसलिए आपको नहीं दिखा मैडम। आप प्रीवियस आपके जितने सुपरिटेंडेंट है आप उनसे पूछिए आप मैडम। आप ठीक है, मैं सर मैं बात करने लगाता हूँ, मैं बात करने लगाता हूँ। आप ना ये अननेसेसरी आप मत रुकाइए। आप सुनिए आप, और यहाँ पर 1 साल 2 साल से नहीं मैडम, ये लास्ट 2 ईयर्स तराबी नहीं थी मक्का मस्जिद में लॉकडाउन की वजह से, इसलिए यहाँ पार्किंग नहीं थी। आप देखिए 50-100 गाड़ियाँ रोड पे, ट्रैफिक का मसला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनिए आप बोलिए जी। इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा? ठीक है, मैं अच्छा मैडम, मैं आपको रिक्वेस्ट का लेटर मेरे लेटर पैड पे देता हूँ मैं आपको, ओके? मैं कल आके मिल के देता हूँ मैं आपको, ओके मैम? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वज़ीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव ने हनमकुंडा ज़िले के कटक शाहपुर इलाके में 60 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने की स्कीम के तहत ये मकानात 3 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किए गए हैं। उन्होंने इस स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में ये मकानात हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उन्होंने अपने 40 साला सियासी करियर के दौरान सिर्फ वज़राए आला को ही पसंद किया, इनमें सिर्फ 2 वज़राए आला हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी कम उम्री में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर एन टी रामाराव को देखा, जिन्होंने गरीबों के लिए वज़ाइफ फराहम किए। दूसरे वज़ीर आला जो उनको पसंद हैं वो चंद्रशेखर राव हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को फ़ीकस 2000 रुपये वजीफ़ा फराहम करने का सहरा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के। ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు 3000 ఇండ్లు ఇస్తున్నాడు, మీ జాగర్లే కట్టుకుంటట్టు. ఇంకా 15 రోజులలో మొదలుపెట్టి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం 3000 ఇండ్లు. మళ్ళీ ఊరికి 20-30 కూడా మీ ధర్మారెడ్డి గారికి ఒప్పజెప్తున్నాం. అవి కూడా మీకు మీ జాగర్లే కట్టుకునేటట్టు కూడా ఏర్పాటు కేసీఆర్ గారు ఆదేశించాడు. కొత్త పెన్షన్లతో పాటు దళిత బంధువు కూడా, ఆ దళిత బంధువు కూడా మళ్ళీ కొత్త 10 లక్షలు కూడా ఈ నెలలో ఇవ్వబోతున్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ, कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकन कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत और गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान कहा कि हुकूमत को दस्तूरी ओहदे पर फायज़ शख्सियत का एहतराम करना चाहिए। जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से गवर्नर को नज़रअंदाज कर दिया जाना दस्तूर का एहतराम ना करने के बराबर है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि गवर्नर का ओहदा एक दस्तूरी ओहदा है, लेकिन यहाँ हुकूमत की जानिब से इस दस्तूरी ओहदे को मुसलसिल नज़रअंदाज किया जा रहा है। गवर्नर की जानिब से राजभवन में मुनक्किदा उगादी तकरीब में वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और DGP ने भी शिरकत नहीं की, जो मायनाक़िज़ है। जगतिया ज़िले के मटपल्ली की ZPTC राधा और उनके शौहर श्रीनिवास रेड्डी TRS से मुस्तफ़ी हो गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत की जानिब से आवाम से किए गए वादों का एहतराम नहीं किया गया। उन्होंने धान की ख़रीदारी और मुत्यमपेट की शुगर फैक्ट्री को भी नहीं खोलने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ऐलान किया कि किसानों की हिमायत में वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं। इसी दौरान सरकारी स्कीमात की मुखालिफत और आवाम के लिए दस्तियाब न होने पर ZPTC राधा और उनके शौहर को TRS ने मुअत्तल कर दिया। सूर्यापेट पुलिस ग्राउंड में ज़िला पुलिस स्पोर्ट्स मीट मुनक़िद की गई। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने बेहतर मुज़ाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। कोरोना से गुज़िश्ता 2 साल से ये मुकाबले मुनक़िद नहीं किए जा सके। कोरोना की कमी के सबब इस साल SP राजेंद्र प्रसाद की कोशिशों से स्पोर्ट्स मीट मुकाबले मुनक़िद किए गए। बादज़ा पुलिस मुलाज़मीन ने खेलों में भी हिस्सा लिया। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी और नल्लाकुंटा पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए हशीश ऑयल फ़रोख्त करने वालों और इसका इस्तेमाल करने वालों को गिरफ़्तार कर लिया।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने 29 साल एम मदन साकिन नाचारम राजू साकिन चरलापल्ली को गिरफ्तार करके उनके पास से 120 ग्राम हशीश आइल और एक मोबाइल फ़ोन जुमला मालियत 72,000 रुपये जब्त कर लिए गए। उसी तरह पुलिस ने मुनशियात इस्तेमाल करने वाले 9 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। एक और कार्रवाई हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने नल्लाकुंटा पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दी। पुलिस ने गांजा और हशीश आइल फरोख्त करने वाले मुलजिम 36 साल नागेश्वर साकिन विशाखापट्टनम को गिरफ्तार करके उसके पास से 840 ग्राम हशीश आइल, 4 सेलफोन, एक मोटरसाइकिल जुमला मालियत 5 लाख रुपए जब्त कर लिए। पुलिस ने मुलजिम के अलावा हशीश आइल और गांजे का नशा करने वाले एक और शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। नोगिली विलेज विशाखापट्टनम का है और ये ऑलरेडी 3 केसेस में एब्सकॉन्डिंग है। नलगुंडा में एक केस, अफजलगंज में एक केस और नल्लाकुंटा में एक केस में ये एब्सकॉन्डिंग है। और लक्ष्मीपति हम जो एक्सक्यू की तरफ से केसेस करें उसमें ऑलरेडी 3 केसेस में ये इन्वॉल्व है, नल्लाकुंटा, अफजलगंज और गोलकोंडा। और ये ऑलरेडी 2016 और 2020 में 3 केसों में ये ऑलरेडी गिरफ्तार हुआ और एक्साइज पुलिस स्टेशन से भी गिरफ्तार हुआ। ये लक्ष्मीपति आदित्यनगर हाफिजपेट का रहने वाला है। ये पूरा राचकोंडा, साइबराबाद, हैदराबाद लिमिट्स में इसका कंज्यूमर्स है। 50,000 1 लीटर 50,000 खरीद के यहाँ पर 6 लाख में बेच रहा है। तो ये पूरा ऑपरेशन में राजेश इंस्पेक्टर, SI डैनियल, रवि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नल्लाकुंटा, सत्यनारायण कांस्टेबल और पूरा स्टाफ इसमें पार्टिसिपेट करके इन लोगों का गिरफ्तारी की। जारिया साल भी आम के किसानों की मुश्किलात में कमी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। मार्च से अब तक आम मुकम्मल तौर पर दरख्तों पर नहीं लग पाए। उगादी के वक्त तक दरख्तों पर कच्चे आम नज़र आ जाया करते थे, ताहम इस मरतबा मौसमी तब्दीली का असर आम के दरख्तों पर पड़ा है और दरख्तों पर कम तादाद में कच्चे आम नज़र आ रहे हैं। मंचिर्याल ज़िले के आम के किसानों ने इस सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जारिया साल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फसलों को नुकसान पहुँचा। उन्होंने कहा कि सूरत हाल बदतर हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि उनकी मदद के लिए आगे आए और उन्हें मुआवजा फराहम करे, जिसके लिए बागवानी या ज़राअत के अहदेदारों की जानिब से सर्वे किया जाए। मंचिर्याल ज़िले के मंदामर्री, भीमारम, बेलमपल्ली, कोटापल्ली, हाजीपुर और दीगर इलाकों में 20,000 एकड़ पर आम के दरख्त फैले हुए हैं। मार्केट में डिमांड वाले दशहरी, हिमायत, बैंगनपल्ली, रसाल जैसे आम इन इलाकों में होते हैं, लेकिन इस साल आम के किसानों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिसी अरकान मुक़र्रना के वफ़द ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद से मुलाकात करते हुए माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के दौरान दुकानात, तिजारती इदारों को पुलिस की रुकावट के बगैर चलाने को यकीनी बनाने के सिलसिले में तफसीली तौर पर नुमाइंदगी की। मजलिसी अरकान मुक़र्रना सैयद अहमद पाशा क़ादरी, जाफ़र हुसैन मेराज, मोहम्मद मौज़म ख़ान, कौसर मोहिउद्दीन, सैयद अमीनुल हसन जाफ़री, सैयद रियाजुल हसन आफंदी ने ये नुमाइंदगी की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने कहा कि इस खुसूस में सदर मजलिस का प्याम कमिश्नर पुलिस को पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा कि ताजिरों को किसी किस्म की रुकावट ना होने दी जाए। उन्होंने कहा कि कमिश्नर पुलिस ने वादा किया है कि कारोबारी इदारों के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज हैदराबाद कमिश्नर पुलिस CV आनंद साहब से मजलिस का एक वक्त मुलाकात किया, जिसमें जाफ़र हुसैन मेराज साहब MLA, मौज़म खान साहब MLA, कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA, रियाजुल हसन अफंदी MLC, अमीनुल हसन जाफरी MLC, ये तमाम लोग शामिल थे। मसला ये था कि सदर मजलिस ने हिदायत दी कमिश्नर पुलिस को पाबंद किया जाए। हर साल रमज़ान में जिस तरीके से कारोबार होते हैं बिला रोक टोक के, बिला रुकावट के, वो कारोबार जारी रखने का इंतज़ाम करे। चुनांचे सदर मजलिस का प्याम कमिश्नर पुलिस को पहुँचाए। अल्लाह का करम है, आज से कारोबार बिल्कुल
सुकून से होंगे और कोई बाजार बंद कर नहीं कराया जाएगा। कोई रुकावट किसी महकमे की तरफ से नहीं होगी। कारोबारी लोग आज़ादी के साथ पुरअमन तरीके से पुरसुकून माहौल में कारोबार करेंगे और ये इंतजाम महकमे पुलिस की तरफ से हुआ है कि कोई भी दुकान को, कोई भी कारोबार को रुकावट पुलिस की तरफ से नहीं होगी, ना कोई कारोबार बंद होंगे। इसलिए ये कारोबार को जारी रखने का आज से सिलसिला शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह खत्म रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं अवाम से, ताजरीन से खुसूसन अपील करूंगा कि वो पुरअमन तौर पर अपने कारोबार को जारी रखें और किसी की बातों में ना, किसी के बहकावे ना आए, ना कोई अफवाहों पर कान धरे। नकीब मिलत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस का अव्वल साथ मुलाकात किया और ये पाबंद किया, सदर मजलिस का बयान पहुंचाया कि हर साल जिस तरीके से कारोबार रमज़ान में होते हैं वही कारोबार जारी रखे जाएंगे। किसी किस्म की रुकावट कारोबारी लोगों को नहीं होना चाहिए। चुनाचे बयान कमिश्नर तक पहुंचा दिया गया है और कमिश्नर साहब ने जी वादा किया है आज से कोई दुकान, कोई कारोबार रुकावट नहीं रहेंगी। बिला रुकावट के, बिला दुकान बंद हुए के कारोबार जारी रखेंगे। पुरअमन तरीके से लोग कारोबार करें, इंतजामिया के साथ ताउन करें। अगर कहीं कोई रुकावट है, कुछ है तो आप मजलिस के काउंसलर, MLAs को इत्तला करें। अब और इसमें आपके मुमकिन तौर पर मदद की जाएगी। लेकिन जो लोगों में तशवीश थी, बेचैनी थी, तो सदर मजलिस जो इन दिनों उम्रे में है, वहाँ से उन्होंने बयान भेजा, उनकी बयान पर पहुँचा कर कमिश्नर पुलिस से भी बात करके निकले हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के तमाम कारोबार पुरसुकून अंदाज में होंगे। शुक्रिया। बरखी शहरों के साथ साथ पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज की अपील के पेश नज़र पुलिस की जानिब से कांग्रेस के कई कायदीन बशमूल सदर PCC रेवंत रेड्डी को घर पर नज़रबंद कर दिया गया था। ताहम रेवंत रेड्डी पुलिस को चकमा देकर किसी तरह घर से निकलते हुए एहतजाज में शामिल हो गए। कांग्रेस के सीनियर कायदीन के एक वफ्द में बाद कमिश्नर सिविल सप्लाईज के दफ्तर पहुंचकर उनको मेमोरेंडम हवाले किया। कांग्रेस ने सिविल सप्लाईज भवन और विद्युत सुधा का मुहासिरा करने का ऐलान किया था। इस एहतजाज के मौके पर पुलिस ने कांग्रेस के कई कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। विद्युत ఛార్జీలను పెంచండి తగ్గించాలి పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచండి పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచండి పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచండి పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచండి వద్దురో నాయనా కేసీఆర్ పాలన వద్దురో నాయనా కేసీఆర్ పాలన వద్దురో నాయనా కేసీఆర్ పాలన వద్దురో నాయనా కేసీఆర్ పాలన విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచండి